welcome to all of you. अभी नहीं चाहिए. Hare Krishna. We had Kirtan? Okay. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. No Vishnu. Hare Krishna. So we are very happy and honored to be amongst all of you, bright-faced students and youths from Bombay. How many of you are working? Okay, 30%. And rest are students or searching for? How many are students studying in school or college? Okay, 60% nearly. Remaining 10-20% are searching for a job, I assume. So how many of you are arriving first time today in this program? First time ever? Okay, oh, we have many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So a warm welcome to all of you first timers. Hare Krishna. Hare Krishna. So, how many of you know the topic of discussion today? Or you just happen to come because your friends invited? Okay, anybody at the back knows the topic? In the middle? Somebody knows the topic today, discussion's topic? Plane crash, okay, one. Okay, fine. So, at least one to know. I was just checking how many actually come for the topic. So you see that all of you are pious students and youths who have from childhood some inclination towards spirituality. है ना, भगवान के प्रति कुछ जय करना चाहिए. All of us, you can see that we have naturally the habit of visiting to a nearby temple, right? Either to offer some flowers or to offer a water glass on Shivaji, Shivalinga. So we are all having the spiritual, some interest, some spiritual, attraction from childhood. Because of that, you have come here again today. Because the topic hardly anybody knows. Almost nobody knows the topic. So when I saw so many students, I thought maybe the topic is very interesting. That's why they read the topic and that's why they have come. But now I came to know that you have come because you all have good spiritual interest. You want to know, what is spiritual life, what is Gita, spiritual knowledge. So a very happy thing to see that, right? So this fellow will उधर आएगा क्या? हाँ आएगा. डुप्लीकेट तो है ही है. आएगा क्यों नहीं है फिर? हाँ, डुप्लीकेट तो है. फिर इधर मैंने किया डुप्लीकेट, फिर क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन पे? इधर भी लगाया अच्छे से. It's not coming. Anyways, so we will see. Recent आ गया. So recently, I did not know. I also came to know from an article written by a devotee that Ahmedabad some plane crash happened and 200 plus people died, right? So then, all of us, we can become very worried that, they're all going to London. They must be important people. And they all died in one stroke. And there is nothing sure.
Anything can happen anytime. And then everybody is in panic. To be honest, tell me honestly, when you heard that news, did you become little fearful? How many of you feel that yes, little fearful I felt inside my heart? Raise hands. You did not understand the question. Okay. आप में से कितने लोग थोड़ा सा डर लगा जब पता लगा अरे इतना बड़ा जहाज गिर गया तो अपने साथ भी कभी ट्रेन में कुछ हो सकता है, जहाज में कुछ हो सकता है. कितने लोगों को थोड़ा सा ऐसा डर सा आया था? हाथ खड़ा करो. Okay, good. At least half of the people. For others, we'll have to do a seminar on honesty. So when we get the news that array such a big aircraft, Boeing, right? It was Boeing, right? It was Boeing. It was not local made. It was Boeing aircraft, and it flew and crashed within short time, and then everybody died. So then we may fear that array. Anything can happen to me also anytime. I was in Bombay when 2007, 8 or something, when several bombs exploded in trains, Vile Parle, and I was in Bombay at that time. So everybody was in panic. And guess what? All schools, all colleges, all coaching classes, all online courses, Udemy or whatever, everyone teaching how to become successful. Everybody ensuring success, teaching success. But nobody is teaching how to face failures in life. And yet the fact is that we are all subject to so many failures. 1993, IIT Bombay, BTech, one student was there. So all first 3 years he was topper. And final year he got 2 subjects, KT or RE or whatever you say, retest or whatever. So then he could not take it, this failure. How will I face my friends and how will I face my parents and my, everybody, they will laugh at me and what will be my respect, dignity or like my status. He couldn't take it. He couldn't face this small failure. And silently one night, or very early in the morning, he silently went and drowned himself in the lake, committed suicide. Such a big premier college of the country, world famous IIT Bombay. Must be caliber student, high caliber student, must be very brilliant, right? But he couldn't face a simple failure. So this is our status, unfortunately, with modern education. Right? So it is very important, that is why, to have such kind of discussions or such kind of forums where we can openly discuss these kind of issues from all angles of vision and come up with very practical, hope-giving, meaningful, purposeful lessons for life, action plan for life, goal of life. This is right in my eyes, this recording video camera, uska flash right in my eyes, it is coming. So maybe we can keep it in one corner this side, so that from side it let it be alright, because right in my eye is coming. Also it is obstructing the flow or the eye contact with the devotees. Little more side. Anyways, the flash is gone now. And this is looking better. Thank you. So correct, you are all getting my point. So that is why Bhagavad Gita is so important. Because Gita talks about all the answer for all the different situations of life. When Japan, around 10-12 years ago, something, and one more was, I forgot, 3. Back-to-back 3 calamities happened. Anybody remembers that? Yeah, Prabhuji remembers. 10 years ago, 10-12 years ago it happened. So that time, one small girl was there. And then they were having online with Christian, some very big saint in Christian world. So they were having online face-to-face video conference interview with him. And a small girl asked, very small, 5-6 years old girl, that my father and mother are dead. Why did God do this to me? And that big saint, it came in the news also, newspaper also, everywhere it came. I also read an online news website, I read. So he said, my dear child, I am sorry, even I don't know.
So then, this is how people they lose. This is how people they lose interest in spiritual knowledge or spiritual life. When the spirituality cannot give answers to the basic questions of my life. In UK, 2011 they did an survey, and they found 25% people said no allegiance to religion. I know we don't have anything to give and take with the religion. 25% of people said like that. In 2014, they did a survey again, the same survey again, and they found the count has risen up to 48%, almost doubled in 3 years. Why? Because spirituality is presented very unscientifically. This information was told by Srila Bhakti Charu Maharaj many years ago in one lecture. He travels all across the globe, and he was a famous speaker for Veda London also. He used to speak in Ernst & Young company and many such famous companies in the UK and America. So he was speaking this because spirituality is presented very unscientifically, without presenting the spirituality has a solid basis and relevance to our lives today, right here now. As I gave you the example of that Christian father, very big man, but he said, I don't know. So then that small little girl, will she ever look again to God for happiness in life or answers of the questions of life? No. So this is an unfortunate situation. I'm sorry. You can also use this time to silence your phones or put it in the flight mode. So in Gita, all the situations are answered. That in this planet Earth, in this world, all are places of misery. बहुत छोटा हो गया. दिख रहा है अभी? पीछे भी दिख रहा है ना? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि ब्रह्मा जी का लोक इस भौतिक जगत में सबसे हाई है, और नीचे से नीचे के लोग ले लो तो ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे के नीचे लोक तक पुनर्जन्म जन्म मृत्यु का चक्कर इस भौतिक जगत में लगा ही हुआ है. जैसे कि जो अभी सिचुएशन हुई अहमदाबाद क्रैश वाली, तो ये तो चलो एक सिचुएशन हुई. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बैक टू गॉड हेड मैगजीन में. बैक टू गॉड हेड मैगजीन है इस्कॉन की इंटरनेशनल मैगजीन है, जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड में सिचुएशंस जो हो रही हैं, चाहे फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे एजुकेशन वर्ल्ड में हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ किसी भी देश में हो, तो मॉडर्न वर्ल्ड में सिचुएशंस हो रही हैं, उसके ऊपर शास्त्रों का क्या दृष्टिकोण है, शास्त्रों का क्या कहना है, उस मैगजीन में आर्टिकल्स लेटेस्ट आते रहते हैं. तो ये शिल प्रभुपाद जी ने शुरू किया था. शिल प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, फाउंडर, उन्होंने शुरू किया था 1944 में, लगभग 80 साल पहले. तो आज पूरे वर्ल्ड में ये मैगजीन लाखों बढ़ता है. तो 1980s का एक एडिशन मुझे मिला जब सर्च कर रहा था इस आर्टिकल, इस डिस्कशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो 1980s में भी ऐसी कुछ डिज़ास्टर सिचुएशंस थी अमेरिका में और यूरोप में. तो उसके बारे में लिखा था कि कैसे पानी के नीचे पूरे सबमरीन्स न्यूक्लियर सब्सटेंस लेकर के रेडी है, और पानी के ऊपर आर्मीज रेडी हैं, और रात को आप देख सकते हैं आकाश मार्ग में इतने सारे लाइफ थ्रेटनिंग स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट्स चक्कर लगा रहे हैं, हर एक एक्टिविटी का नज़र रखने के लिए कि क्या हो रहा है कंट्री के आसपास. और UCLA के एक स्टूडेंट, लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ने आज एक हॉर्न सा पकड़ करके बच्चों को एड्रेस किया कि इम्पीरियलिस्ट्स मीन्स राजशाही
तानाशाही वाले लोग युद्ध करने पे लगे हुए हैं, है ना, अपनी प्रॉपर्टी और जीतने के लिए, देश बड़ा जीतने के लिए, और हम सबको ज़बरदस्ती आर्मी में डाल करके परेशान कर रहे हैं। हमको ये सब नहीं करना है, हमको इसका विरोध करना है, यहाँ पर ये हो रहा है। और एक रफ करके व्यक्ति है, तो वो सिचुएशन को पूरा जायज़ा निकाल करके बता रहे लोगों को कि अभी सर्वाइवल मोड में जाना पड़ेगा सबको, कि हमें ज़िंदा रहना है कैसे भी करके, उसके लिए तैयारी कर लो। तो वो सेमिनार्स ले रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को, अपने सब बचाना है, चलाना है। और उसको इतना पैसा दे करके भी लोग जा रहे हैं उसका सुनने के लिए, सर्वाइवल सेमिनार रफ का। और रफ ही नहीं ऐसा कर रहा है, बाकी लोग भी ऐसे हैं जो ग्रॉसरी माने ये राशन, चावल दाल आटा, ये सब घर पे लेकर के आने वालों को बोलते हैं परवेर। तो परवेर अपने एडवर्टाइजमेंट फैला रहे हैं कि आपको बताइए क्या घर पे लाके देना सामान, सब लाके देंगे हम। और वाटर बेड मतलब आपका पलंग, घर में जिसमें सोते हैं ना आप, तो वैसे वाटर बेड भी आते हैं कि उसमें पानी भर के आप उस पर सो जाइए तो आपको बड़ा अच्छा नींद आएगा। तो वाटर बेड्स बहुत ज़्यादा अभी लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटर बेड में लगभग 900 लीटर पानी तक भी भरा जा सकता है बड़े वाटर बेड में। तो पानी इतना भर के रख लेंगे, टंकी की तो कैपेसिटी लिमिटेड है, तो वाटर बेड में पानी भर के रख लेते हैं अभी से ही। और परवेयर्स के द्वारा राशन पानी तो महंगाई ले रहे हैं लोग, घर में तो भर ही रहे हैं, गाड़ी में भी भर रहे हैं पानी और राशन। ये डिहाइड्रेटेड फूड तो घर में भर रहे हैं, गाड़ी में भर रहे हैं। ये बिस्कुट वगैरह, कुकीज़ और ब्रेड, केक्स, ये सब भर रहे हैं, गाड़ी में भी भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी से अगर रास्ते में जा रहे हैं और सामान लाने के लिए दुकान से, या पेट्रोल भरवाने के लिए कुछ, या दवाई डॉक्टर के पास, और बीच में ही अगर युद्ध हो गया और गाड़ी वही जाम हो गई, तो गाड़ी में भी इतना सामान रहना चाहिए कि खाने के लिए होना चाहिए सब। और एक्चुअली ये मजाक की बात नहीं है, 2006 की बात है, जहाँ तक मुझे याद, 2006 या 7, कि मेरे बड़े भाई तो गुजरात में बड़ौदा में थे। तो वहाँ भी बहुत बड़ा ये फ्लड आ गया था, बहुत फ्लड आ गया था। तो मेरा भाई भी भागा गया था दुकान पे कुछ ब्रेड और ये सब लाने के लिए, और पहुँच तो गया, पर वापस आते थे उसके यहाँ तक पानी आ गया था, ऑलमोस्ट यहाँ तक। ब्रेड ऐसे पकड़ करके, क्योंकि आदमी को जीना है, मरना तो कोई नहीं चाहता, तो यहाँ तक पानी आ गया था। हाउ ही वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था। सो ही वाज डिप्यूटेड फ्रॉम गुड़गांव बाय द IT कंपनी फॉर द बिजनेस एनालिस्ट जॉब। सो यू मे बी बिजनेस एनालिस्ट और वट एवर बिग मैन यू मे बी, बट व्हेन द नेचर स्ट्राइक्स यू आर ऑन द रोड। सो पानी यहाँ तक भर गया था, और ब्रेड ऐसे पकड़ करके दोनों हाथों में, और जो भी सामान ला रहा था, कैसे भी वो ऐसे तैरता था पानी में, कैसे पैर भी नहीं उठ रहे थे, पैर नीचे से, और कैसे तो भी पहुंचा था मरते बच करके। तो बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है एक्चुअली। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पर 80s में भी अमेरिका में, यूरोप में हो गई थी। हाँ, और कुछ लोग, एक ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी वेपन्स वालों की, वो वेपन्स माने बंदूक, गोली मारने वाली बंदूक। तो बंदूक की भी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी। एक एड आई थी कि उसमें एक यंग लेडी है, दोनों हाथ में बंदूक लेकर के ऐसे खड़ी है और बोल रही है, मेक लव नॉट वॉर बट बी रेडी फॉर बोथ। मतलब सब प्रेम से रहो, युद्ध मत बनाओ, गवर्नमेंट क्या कर रहे हो, लेकिन प्रेम नहीं हुआ, युद्ध हो गया, तो मैं बंदूक के साथ भी रेडी हूँ, तो आपने भी रेडी होना चाहिए, बंदूक खरीद लो। तो ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट बना के लगा रखी थी। तो यू कैन इमेजिन कितना, है ना, खतरनाक सिचुएशन हो गई कि कभी मृत्यु आ सकती है, कहीं से भी गोली आएगी, कभी युद्ध हो जाएगा, कभी भी एयर स्ट्राइक्स हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा कभी भी। तो उसके लिए तैयारी कर लो। करेक्ट? बट हम ये भूल जाते हैं, क्या सिर्फ कोविड ही आपको मार सकता है? क्या सिर्फ ट्रेन में बम ही आपको मार सकते हैं? क्या आपको वॉर हो गया वही मार सकता है? क्या टेररिस्ट, क्या ऐसे कोई झगड़ा ही आपको मार सकता है सिर्फ? एकदम खुशी के वातावरण में भी तो मृत्यु आ सकती है। जैसे 10-12 साल, 12-15 साल पहले लगभग NIT इलाहाबाद फाइनल ईयर का बच्चा था, एक अनुष टंडन। तो फाइनल ईयर की पढ़ाई करते करते साथ में उसने प्रिपरेशन किया IAS का।
और फाइनल ईयर पढ़ाई करते करते उसने आईएएस का पेपर दिया। फाइनल पढ़ाई जैसे खत्म होते ही सिलेक्ट भी हो गया। कलेक्टर वो पोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक आ गया, सिलेक्ट हो गया आईएएस ऑफिसर। और 3 दिन बाद उसकी ट्रेनिंग होनी थी, कहाँ पता नहीं, मैं भूल गया, लाल बहादुर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हाँ, जो 12-15 घंटा पढ़ाते हैं डेली, करेक्ट ना, 6 महीने के लिए। तो वह 3 दिन बाद जाने वाला था वो बस। और 2 दिन के घर पे आया था पार्टी वार्टी करने के लिए, भाई बच्चा हमारा NIT इलाहाबाद से पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC ऑफिस सेलेक्ट हो गया, और क्या चाहिए इससे बढ़िया, ड्रीम कम ट्रू हो गया लाइफ। तो अब यही तो लाइफ, इससे बढ़िया लाइफ क्या हो सकती है किसी की। और पार्टी कर रहे थे घर पे, खाना पीना खा रहे, सब दोस्त रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए थे, और सडनली उसको दिल में कुछ दर्द हुआ, वहीं लेटा और वहीं पर ही मर गया ऑन द स्पॉट। हार्ट अटैक, फाइनल स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक एंड वहीं डेथ। रियलिटी है। तो कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ टेररिस्ट में, अटैक में, इसमें डेथ हो सकती है, इससे बच गए तो फिर बच गए। पर डेथ कैन कम एनी मोमेंट, एनी टाइम, एनी वेयर। वाई यू टू वरी अबाउट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डेथ? डेथ तो होना ही है, डेथ तो होना ही है, एज श्योर एज डेथ। कोई बचा नहीं डेथ से। गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु सब कुछ, मृत्यु के रूप में मैं आऊँगा। जो लोग कहते हैं ना मैं नहीं मानता भगवान कुछ नहीं होता, अरे ये सब तेरा हरे कृष्णा वालों का, इस्कॉन वालों का बेवकूफ़ है। तो उसको सिंपल क्वेश्चन पूछिए, सर फिर आपके ऊपर डेथ कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है डेथ? रोक लो फिर उसको। छोटे बचपन में कभी कोई बच्चे को खिलौना लेकर आते ना छिपकली का, देखा आपने, यहाँ रख देते थे और फिर बाजू वाला बोलता था अरे तेरे यहाँ पर क्या है है करेक्ट ना? बच्चे स्कूल में मजाक करते थे और फिर बाद में देखता था कि वो रबड़ का है ना। तो एक छिपकली भी आपके ऊपर कोई डाल दे तो आप ऐसे करते, एकदम से उड़ा के फेंकते और उसको मारते भी देखे, तूने मेरे ऐसे छिपकली को डाली करेक्ट ना? तो उसको पूछो दोस्त, एक छिपकली से ऐसे उड़ाते हो और मारते हो, डेथ तुम्हारे ऊपर कौन डाल रहा है? वो गीता बता रहा है ना? तो उसकी हमने तैयारी करनी है। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर, इंटरनेट लगाना पड़ेगा, इसमें इंटरनेट नहीं है ना, तब ये आपको हम दिखाएंगे बड़ा सुंदर एक श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे ही घटना के ऊपर। इंटरनेट लगा दिया, लगा Vivo V50 है, OnePlus आ गया। हाँ, तो कितने मिनट से आपने देखा था गौरव प्रभु का है? कितने मिनट से प्ले करना है पता है क्या? देखा था उन्होंने? ओके, मुझे पता है 18-19 मिनट्स कुछ तो है लगभग, वहाँ से प्ले करना है। ये जो इंटरव्यू है ये 1971 का है, दिल्ली में हुआ था 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, करेक्ट, उस टाइम का है ये। तो ये रिपोर्टर आया था और श्रील प्रभुपाद जी कौन है? हाँ, जिन्होंने इस्कॉन शुरू किया सिंगल हैंडेडली, किसी की हेल्प के बिना, 1 पर्सन सिंगल हैंडेडली, जिन्होंने इस्कॉन कॉन्सेप्ट सोचा शास्त्रों के आधार पर और फिर क्रिएट किया, टेम्पल्स बनाए, प्रीचिंग किया, ग्रंथ दिए, भक्त बनाए, ट्रैवल करके पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया सिंगल हैंडेडली। तो वो पर्सन है श्रील प्रभुपाद जी। तो इनका इंटरव्यू लेने के लिए पूरे वर्ल्ड में लोग, बड़े बड़े लोग आया करते थे। तो दिल्ली में भी 1971 में थे जब श्रील प्रभुपाद जी, तो इनका इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आया था। तो उसका रिकॉर्डिंग सब भक्त लोग उस टाइम के जो थे प्रभुपाद जी के साथ में, वो सब रिकॉर्डिंग कर लेते थे प्रभुपाद जी की, क्योंकि इतने बड़े महान संत आचार्य हैं जो शायद दुनिया में दोबारा, इतने बड़े संत आचार्य कोई दोबारा नहीं आएंगे जल्दी, तो उनका सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते थे वो। तो ये वैसे ही रिकॉर्ड है। आवाज़ इधर से क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा तो आवाज़ आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, वो प्रोजेक्टर में जा रहा है क्या आवाज़? तो इधर आना चाहिए ना आवाज़, प्ले तो हो रहा है, फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रहा? प्रोजेक्टर में आवाज़ आ रहा है क्या?
साउंड कहाँ है? साउंड तो फुल है। प्ले क्यों नहीं हो रहा फिर? उधर दिखना भी चाहिए ना डॉक्यूमेंट। ये ऐसा करो, आपके मोबाइल से गौरव प्रो कहाँ है? आपके मोबाइल से प्ले कर दो ना। हाँ मोबाइल, हाँ गौरव प्रो आपके मोबाइल से प्ले कर दो ना, वो जो प्ले करना था ना प्रभुपाद जी का, आपके मोबाइल से प्ले कर दो। मैं माइक पे लगा देते हैं और मैं डॉक्यूमेंट यहाँ से दिखा दूंगा लैपटॉप से, क्योंकि ना उसका आवाज़ पता नहीं किधर जाता है। 18 मिनट कुछ तो करो, 10 मिनट का है लगभग ये। आप बहुत ध्यान से देखना कि कैसे जो हमने चर्चा किया उसके प्रभुपाद जी की शिक्षा से आ रहा है। प्रभुपाद जी 50-60 साल पहले इतने डीपली रिफाइंड विजडम दे रहे हैं, उठो जिसके प्रति, जागो जिसके प्रति। कैसे श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में कन्विंस कर पाए लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति। आप देख सकते हैं उसका एक झलक, कितनी डीप विजडम दे रहे हैं प्रभुपाद जी। ये तो आप पढ़ पा रहे हैं सब पीछे तक, करेक्ट? क्लियर पढ़ पा रहे हैं ना? 18 मिनट्स कुछ तो लगाओ, फिर बता दो, और आगे पीछे करना होगा शायद। इधर से भी क्या हो गया पता नहीं, मेरे साथ प्रिएटर में आवाज आ रही है, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे, नहीं चल रहा? आगे करो, आगे करो, 4-5 मिनट आगे करो। आप देख के रखना चाहिए था ना प्रभु। 4 मिनट आगे करो। ये 12 नंबर पेज तक पहुंचे आप, अपने को 16 नंबर पेज पे आना है। 16 नंबर 2-3 मिनट आगे करो। कैसे करते पता है? वो फॉरवर्ड एरो का है ना, फॉरवर्ड एरो वो 5 सेकंड फॉरवर्ड करता है। मिल गया? We have to increase our attachment for Krishna by this process. Tata Shakti Tata Bhavo. That is see Krishna everywhere. That is Krishna here. That is knowledge. We have not that. That's the one. The last thing is, we cannot live without Krishna. थोड़ा फॉरवर्ड करो, वो फॉरवर्ड का बटन दबाओ, वो 5 सेकंड फॉरवर्ड करता है वो। आगे करो। थोड़ा और आगे। Krishna says, Sarvanaman Mamekam Sarvam. If I say unto you that you do everything, come with me. Unless you want all take, how can you do it? That is it. That I like to increase, and then it will reach to the state of love. Just look at it from the best conscience of another saint. Or he said, if somebody give me love, I will give peace. He wants to be a distinct love. In your case, the praise of the love. He says, give me love, I give you peace, Shakti. Praise do, Shakti do. बस। सो आपने सुना सायरन की आवाज़ आ रही है, तो ये सायरन है 1971 वॉर का, कि अभी जो वहाँ पर लगा था दिल्ली में उस टाइम पे कुछ कर्फ्यू जो भी, तो वो ऑफ हो गया है कुछ, तो उसका सायरन है, ये रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ से डिस्कशन शुरू होगा 10 मिनट लगभग 8-9 मिनट, तो आप ध्यान से ऑडियो और ये टेक्स्ट साथ साथ में समझना। प्लीज़ प्ले।
Trying to cure patchwork while giving the supreme cure. That is different. No patchwork disease cure will help you. Complete cure. जन्म कर्म में दिग्गम जी जानाति तत्तथा तत्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति. That's it. That you want. No more repetition of past and death. Mahamati. That is the benefit of it. Jadvadhyanavivartante tadhamam paramam. If you go to Krishna, then you don't come back again. Sir, his mind was a very hypothetical question. Supposing 100. So you saw, श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आप तो हमेशा ही डेंजर में हो, आप हमेशा ही डेंजर में हो. अभी आप याहिया खान के पास जाके रोक भी दोगे इंडिया पाकिस्तान का वॉर, तो उसके बाद बीमारी आपको मार देगी, हार्ट अटैक मार देगा, बचने वाले तो हो नहीं. हमें से कितने लोग हैं जिनकी दादा परदादा टेररिस्ट के अटैक से मर गए? हाथ खड़ा करो. कोई भी नहीं, फिर भी वो मर गए. चलो आप में से बहुत सारे लोगों के दादाजी तो अभी होंगे, पर परदादा जी तो चले गए होंगे सबके, करेक्ट? किसी कोई है जिनके परदादा जी भी हैं अभी? होंगे क्या? एक आधा कोई नहीं, कोई भी नहीं, सबको चले गए, करेक्ट? और कोई भी टेररिस्ट से नहीं मरे, चले गए ना वो भी. इंडो पाक वार से नहीं मरे, चले गए ना वो भी. तो इस पॉइंट के प्रति हमारा दृष्टि उठा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि सोचो इस बात को. ये प्लेन क्रैश या इंडो पाक वॉर या कोविड या टेररिस्ट, ये ही आपके मृत्यु का कारण नहीं है. मृत्यु का कारण तो कुछ, मृत्यु तो होनी ही है, कारण कुछ भी बने, मृत्यु तो होनी ही है. कोई चाहे एकदम घर में सुरक्षित स्वस्थ रहे 100 साल की उम्र के बाद मृत्यु, तो उसकी भी हो ही जाएगी, है ना? तो ये पॉइंट प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअली याहिया खान नहीं है. आपका प्रॉब्लम एक्चुअली ये बॉडी जो ब्रेकेबल है वो है. जैसे कई बार घर पे देखा है आपने, वो क्रॉकरी होता है ब्रेकेबल. क्रॉकरी मतलब वो बर्तन चीनी मिट्टी के देखे होंगे आपने ना, चाय वगैरह डाल के देने के लिए, तो वो टूटने वाले होते, थोड़ा सा भी छूट गया हाथ से टूट जाएगा. तो लोग क्या कहते हैं, अभी अनब्रेकेबल वाला लेकर के आएंगे, करेक्ट? जो ब्रेकेबल वो प्रॉब्लम है. उसी प्रकार से ये बॉडी ही प्रोन टू डेथ है. प्रॉब्लम यहाँ है. प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ. फिलॉसफी मतलब गोइंग टू द अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट रूट ऑफ थिंग्स. तो गीता हमें वहाँ लेके जा रहा है. आप ब्रह्म भुवनाल लोक का जो पहला श्लोक देखा था कि ब्रह्म लोक से लेकर के मर्त्य लोक तक इस भौतिक जगत में सब मरने वाले हैं, बचेगा कोई भी नहीं. ऐसा नहीं है कि आप जाओ राजस्थान में एक व्यक्ति है प्रभु जी 600 साल से जी रहा है, हमने देखा है, या 5000 साल से जी रहा है. नहीं, मृत्यु सबको आनी है, आपको और मेरे को भी आनी है. 40 साल 50 साल बाद हम दोनों ही यहाँ पर मुंबई में भी इस पृथ्वी पे ही शायद नहीं होंगे. कहाँ होंगे पता नहीं, किस योनि में होंगे, इस शरीर में तो नहीं होंगे, करेक्ट? तो उसके प्रति श्री प्रभुपाद जी हमारी दृष्टि उठा रहे हैं. डर डर के क्या क्या से बचते रहोगे. कभी कोविड से बचोगे, कभी प्लेन क्रैश से बचोगे, कभी टेररिस्ट से बचोगे. एक हमारे भक्त हैं, तो वो कह रहे थे कि पापा ने बोला है आपका जो जॉब लेना है अभी नेक्स्ट स्विच करके, तो कोई भी ऐसी जगह पे लेना जहाँ इंडो पाक वॉर का, इस तरफ से गुजरात की तरफ उधर लाइन पे नहीं लेना, और इधर कलकत्ता की तरफ नहीं लेना. क्यों? उधर खतरा है. हाँ, दिल्ली में खतरा नहीं है, कर्नाटक में खतरा नहीं है. मृत्यु तो सब जगह पर उतना ही है, 100%, करेक्ट? तो ये हमको समझना है गीता से कि गीता बता रहा है कि प्रॉब्लम है कि हम इस बॉडी में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं. मटेरियल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मैटर का, मैटर जैसे ये मैटर है ना, प्लास्टिक मैटर है.
ये भी मैटर है, कपड़ा है ना, ये भी मैटर है, मेटल। तो ये सब पदार्थ मैटर समझते हैं ना, मैटर। तो मैटर का वर्ड मटेरियल वर्ल्ड। तो ये प्रॉब्लम है कि हम मैटर के वर्ल्ड में हैं और हम हैं सोल, आत्मा। ये सबसे पहली शिक्षा देते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में। शुरुआत करते हैं यहाँ से, दूसरे अध्याय के 13, 14, 15 श्लोक से आत्मज्ञान कि सबसे पहले तो अर्जुन स्पिरिचुअल लाइफ में ही समझो कि आप ये शरीर नहीं हो, ये तो कपड़ा है, आप तो इसके अंदर हो, आपने ये कपड़ा पहना हुआ है और ये चलता है 40, 50, 60, 70, 80 साल तक चलता है। ये चलता है 6 महीना, 1 साल कपड़ा। वैसे ये भी कपड़ा है, आत्मा का कपड़ा। 40, 50, किसी का 2-4 साल चलता है, किसी का 100 साल चलता है, बस 100 साल चलता है, 120-130 साल बस। उसके बाद तो कपड़ा सबका खराब हो जाना ही है। आप ये कपड़ा नहीं हो। जैसे दादाजी कैसे समझे गुरु जी हम कपड़ा नहीं है। हम देखते हैं दादाजी हर रोज सोते हैं दोपहर को और शाम को उठ के फिर सैर करने जाते हैं, करेक्ट। ऐसे नहीं कि दादाजी सो रहे हैं तो उनको उठा के ले जाके हम जला देते हैं शमशान घाट में। ऐसे करते हैं, कोई नहीं करते ना। लेकिन एक दिन ऐसे करते हैं, करेक्ट। दादाजी सो रहे हैं और उठ गए और सब रोने लग जाते हैं। दादाजी सो रहे हैं और बाकी सब रो रहे हैं और आप खो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे दादाजी सो रहे हैं हर रोज की जैसे, तो तब तक उनको उठा के ले जाकर जला देते हैं। अरे जला दे, क्यों जला दिया है, आज क्यों जला दिया? हाँ, कपड़ा खराब हो गया, क्यों जला रहे हैं आज? हर रोज तो सोते दादाजी। हाँ, क्योंकि आत्मा थी अंदर, वो चली गई। दादाजी तो हर रोज सोते थे 3 से 5, पर उनको ले जाके जला नहीं देते थे। आज जला रहे हैं उनको 5 बजे ले जा करके। हर रोज डिफरेंस कुछ नहीं है, पर ये दादाजी नहीं थे जो हम देख रहे थे। टाइम भी उठे नहीं तो इसे जला दिया। नहीं, ऐसे नहीं है, करेक्ट ना, समझे आप? दादाजी ये नहीं थे, दादाजी कुछ और थे जिनको कभी हमने समझा ही नहीं। इसलिए जो मम्मी पापा दादाजी को इतना प्रेम करते थे, आज वो ले जाकर के उनको जला रहे हैं। वो जो अंदर थे, आत्मा छोटी सी, वो दादाजी थे एक्चुअली, जो काम के थे। जिसको हम समझ रहे थे उसको तो हम ही ले जाके जला रहे हैं जल्दी से, एक रात भी नहीं रख रहे, क्योंकि वो दादाजी नहीं थे, अंदर थे दादाजी, आत्मा। और श्रील प्रभुपाद जी जब MIT में गए, अमेरिका में MIT कॉलेज है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का टॉप कॉलेज आता है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी को, कि पूरे विश्व में प्रभुपाद जी जहाँ भी जाते थे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेस, यूनाइटेड नेशंस वाले बुलाते थे, हर जगह बुलाया जाता था। क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस समय पे 1965 से 1977 में गीता की शिक्षाओं को जिस प्रकार से पूरे विश्व में फैलाया, अमेरिका की पार्लियामेंट में वहाँ पर मंत्री ने खड़े होकर बोला था कि अगर इन लोगों को हम नहीं संभालेंगे तो ये तो जल्दी गवर्नमेंट इनकी बना लेंगे। अमेरिका में घर के सीरियल्स में, मूवीज़ में, हर जगह हरे कृष्णा के बारे में वो सीन्स आते थे, कुछ बातें आती थी। इतना एक्सप्लोजन हो गया था पूरे वर्ल्ड में, प्रभुपाद जी ने कर दिया था गीता की शिक्षाओं का। तो प्रभुपाद जी को बुलाया गया, कहाँ बोला था भूल गया, हाँ MIT में। हाँ, कितने इंटेलिजेंट, सब याद रखे, इतने ध्यान सुन रहे हैं, थैंक यू। सो MIT में जब प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर यही पूछा, क्योंकि जो अंदर जा रहे थे ना, कॉलेज बहुत बड़ा है वो, तो सब दिखा रहे थे, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट ऑफ ये सब दिखा रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब बड़े खूब खुशी से फूल रहे थे। और जाके जब ऐसे बैठे सेमिनार में, प्रभुपाद जी बैठे, सारे लोग, उनके बड़े बड़े अफसर, डीन, प्रोफेसर और बच्चे सब इतना भर के, तो प्रभुपाद जी ने बैठ गए। प्रभुपाद जी सबसे पहले पॉइंट ये पूछा, इन दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड, वेयर इज द डिपार्टमेंट विच इज टीचिंग यू, टेलिंग यू द नॉलेज अबाउट दैट थिंग जिससे ये जिंदगी चल रही है, ये शरीर चल रहा है, ये लाइफ चल रही है, किस पे टिकी हुई है ये? वो जैसे ये बिल्डिंग है, आप जानना चाहेंगे ना कि फाउंडेशन है कि नहीं, किस पे खड़ी है बिल्डिंग है, बेस फाउंडेशन। उसी प्रकार से मेरी ज़िंदगी का आधार क्या है, किस पे चल रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, हमेशा नहीं उठता है,
कई कई लोग ऐसे करने लगते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है, फिर हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है, फिर नहीं हमेशा कभी उठता है। पर मेरा तो उठ जा रहा है जब भी मैं चाह रहा हूँ, उसको तो पैरालिसिस होगा, उसका नहीं उठ रहा है अभी हमेशा के लिए। तो ये क्या है आधार? ये एजुकेशन की बिगिनिंग है। और प्रभुपाद जी ने वहाँ जा करके हिम्मत करके सबके सामने ओपनली बोला फर्स्ट क्वेश्चन, और जितने बोल रहे थे सब लोग पूरे शांत हो गए, एकदम ध्यान सुनने लगे। फिर ये बात तो सही है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली हमने, पर ये नहीं पता किया कि जिंदगी हमारी चल रही है किसके आधार पे चल रही है, किस आधार पे चल रही है। तो ये हैं जो महान संत आचार्य श्री प्रभुपाद जी, जो हमको रियलिटी फेस करवाते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कितने सुंदर रूप से प्रभुपाद जी, वो रिपोर्टर यही कह रहे हैं, सर इतने लोग या खान को जाके रिक्वेस्ट करना चाहिए, रुक जाओ, खतरा नहीं, बड़ा खतरा ये है वो है, क्या करें क्या करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप पगले के जैसे दूर भाग रहे हो, खतरा तो कंटिन्यूअस है, डेंजर इज ऑलवेज देयर। कितने लोग देखे हैं हल्का स्लिप हो गया जलगांव स्टेशन पे 15 साल पहले 16 साल पहले, एक लड़का सीढ़ी उतर रहा था, लास्ट सीढ़ी उतर रहा था, बस एक भी सीढ़ी बाकी थी, पैर स्लिप हुआ, ऐसे गिरा तो यहाँ पर ठोका सीढ़ी और एक बूंद खून का निकला, बस ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। वो खतरा तो हर कदम पे है, कहाँ नहीं है। ऐसे ही IIM में देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर है, देहरादून का टॉप है इंडिया का, वहाँ एडमिशन मिलना मतलब बहुत टफ है। तो वहाँ पर एडमिशन मिला था हमारे जितात्मा प्रभु के अंकल के बेटे को, हमारे भक्त हैं। तो वो बता रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, उसको 3 दिन बाद ज्वाइनिंग था उसका। गांव गया था, थोड़ा पहाड़ी इलाके में थोड़ा ठंडी हवा खाने के लिए फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे आंटी अंकल, और एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, वहीं डेथ हो गई बंदे की। IIM देहरादून, जिसको पता है मिलिट्री के बारे में उसको पता होगा IIM देहरादून क्या होता है ना। लाखों लोग मरते हैं उसमें एडमिशन मिलने के लिए। तो मृत्यु तो कई देर भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। प्रॉब्लम मृत्यु का नहीं है, प्रॉब्लम ये शरीर का है जो मृत्यु खा लेता है। उससे बचने का ट्राई करना है हमने। गीता में कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्य परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम हर्षि। जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु तो उसकी होनी ही है। ये जो लोग भगवान को नहीं मानते, मुझे ट्रेन में एक व्यक्ति मिला था, जलगांव जा रहा था, मैं वो बोल रहा था, महाराज मृत्यु तो सबको आनी है। जब मैंने बोला ना मृत्यु की बात, बोले मृत्यु तो सबको आनी है। मैं कह लेकिन आने सबको है, पर चाहते कितने लोग हैं मृत्यु। तब वो चुप हुआ। बहुत देर से कह रहा था मैं कुछ भगवान नहीं मानता। मैं कहता गीता लीजिए, छोटी बुक लीजिए, प्लीज़ पढ़िए भगवान के बारे में। नहीं, मैं नहीं सब मानता, मैं नहीं। जब ये पॉइंट पूछा मैंने, चाहते कितने लोग हैं सर आपके हैप्पी लाइफ में, तो ये अड़चन है ना बड़ी, सबसे बड़ी, क्योंकि सब कुछ खत्म कर देगा आपका। तब वो शांत हुआ, तब वो सुनने लगा। फिर नंबर भी दिया उसने बाद में अपना कि हाँ ये तो बात है कि हम तो मृत्यु नहीं चाहते। तभी तो कोविड में सब लोग अंदर चुप के डर के बैठ रहे थे। करेक्ट? चाहे कोई जिम वाला हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई सेठ हो, चाहे कोई भी हो, मृत्यु तो किसी को नहीं चाहिए। सभी डरते हैं मृत्यु से। जो सुसाइड भी दिखा रहा है, मैं सुसाइड करने से डरता नहीं हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, कर भी लिया हूँ। वो सुसाइड इसलिए नहीं कर रहा कि सुसाइड में पसंद आ रहा है, मृत्यु में मजा आ रहा है उसको। उसकी ज़िंदगी इतनी परेशान है, वो कह रहे सुसाइड करके मैं हैप्पी हो जाऊँगा, इसलिए सुसाइड कर रहा है। ये तो जीवन जीना चाहता है वो, पर जीवन इतना उसका परेशान हो चुका है, वो कह रहे सुसाइड में हैप्पी हो जाऊँगा, इसलिए सुसाइड कर रहा है। ये सुसाइड नहीं करता, नहीं तो वो जीवन जीना चाहता है वो। तो इसलिए गीता में टाइम कम है, इसलिए मैं आगे का पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। भगवान कृष्ण बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं गीता में हमको। ये 16वां श्लोक था, उसके 4 श्लोकों बाद भगवान बता रहे हैं। अभी तक जो हमने सुना, ये सुन के थोड़ा होपलेस ऐसा लगता है ना कि प्रभु जी अच्छा मतलब समझ में आ ही गया। फिर आज तो कि सभी को मरना है, फिर इतना टेंशन क्या लेना जिंदगी का, फिर पढ़ाई भी इतनी क्यों करनी, इतना मम्मी पापा पीछे पड़े, पढ़ो बेटे, सारा दिन दिमाग खा जाते हैं, पढ़ो, इतने ट्यूशन क्लासेस और इतने कंपटीशन, इतना है ना। कोई भी जॉब लेने के लिए जाओ। बीच में आया था एक गांव के सरपंच, गांव का जो एक छोटा सा ऑफिस होता है ना गांव में, सरपंच के अंडर वो कागज काम करने के लिए, गांव का सचिव या जो भी गांव पंचायत का ऑफिस का काम करने के लिए, तो उसकी नौकरी निकली थी। तो उसमें 4 बीटेक इंजीनियर क्वालिफाइड ने उसका फॉर्म भरा था। उसके लिए क्वालिफिकेशन थी 4वीं पास, 4वीं पास किया उसको मिल जाएगी नौकरी। किधर भी आप जाओ, मतलब इतना कंपटीशन है नौकरी के लिए। तो हमको इतना फिर लगेगा प्रभु जी इतना जब मरना ही है एक दिन, तो फिर इतना टेंशन क्या लेना, फिर कैसे भी जियो। फिर
यस, अगर इतने यहाँ तक सुनेंगे तो यही कंक्लूजन आएगा। इसलिए गीता में लोग भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 16 श्लोक मैंने पहले दिखाया कि मृत्यु तो ऊपर से नीचे सब जगह पर है। तो फिर क्या करें? होपलेस हो गए, बस मरने की वेट करें एक दिन, और कहीं भी एक्सीडेंट कर दे सड़कों पे, मरना तो है यार। नहीं, फिर उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला ये बड़ा स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है इसमें? कि आप इसमें भक्ति करके अमर जीवन प्राप्त कर सकते हो। ऐसा बॉडी मिल जाएगा जो कभी मरेगा नहीं। पहले वो आप ट्राई करो, उसके बाद फिर आपने डिग्री, बंगला, गाड़ी सब करना। क्योंकि डिग्री, बंगला, गाड़ी करते करते जैसे मनुष्य टंडन पढ़ाई करके यूपीएससी ऑफिसर सिलेक्ट होकर हो भी गया, बस फिर फायदा क्या हुआ? करेक्ट? तो शास्त्र वो कह रहे हैं पहले एंजॉय करने के लिए आपका जो फाउंडेशन है वो बॉडी, पहले वो तो पक्का कर लो। आपने कुछ दिन रात मेहनत करके आपने बड़ी नौकरी ली, और जिस दिन पहली पगार आई एंजॉय करने जाने थे, चलो कुछ मूवी देखने जाएंगे, चलो कुछ जू बीच में घूमने जाएंगे, वहीं मृत्यु हो गई। तो अरे लो 25-30 साल दिन रात पढ़ाई करी और आज एंजॉय करना था और आज मृत्यु हो गई। कितना बड़ा धोखा जैसा है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है कितना बड़ा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि यही जगत एकमात्र जगत नहीं है, इसके परे भी एक और जगत है। मेरे पीछे आप श्लोक बोलने का प्रयास कीजिए। परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। स्टिल एक और अप्रकट जगत है जो सनातन है और इस जगत से परे है। वो परम है और कभी भी नष्ट नहीं होता है। जब इस जगत में सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी वो जगत कभी भी नष्ट नहीं होता है। और मनुष्य जीवन में जो बेटर बुद्धि मिली है वो इसके लिए मिली है कि आप भक्ति करके जीवन में ये क्वेश्चन पूछ करके कि मुझे दुख क्यों हो रहा है और कौन दे रहा है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और पीछे से आकर कोई थप्पड़ मारे तो मैं ऐसे देखूंगा कि नहीं? फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा मेरा?